वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। इसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मेक द डायग्राम। डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा भाई, जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम है कि सर डायग्राम आपने एग्जैक्ट बुक जैसा नहीं बनाया, डायग्राम आपको खाली एक रेफरेंस के लिए दिया गया है, आपको भी बुक की तरह बनाना ज़रूरी नहीं है। सो डायग्राम बना लिया मैंने एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि 1, 2, 3, 4 मेरे पुराने वीडियोस में आ चुके हैं, सो यू कैन गो ओवर देयर एंड वॉच इट। दिस इज A, B, C, दिस इज D, दिस इज B, दिस इज Q. Okay, so let's start the question. So first thing which we do is we write to prove. What are the things we are supposed to prove? The first thing is triangle ABD is congruent to triangle CQB. The second thing is AP is equals to CQ. Third part is triangle AQB is congruent to triangle CPD. Fourth thing is AQ equals to CP, and fifth part is APCQ is a parallelogram. Now this is a sign of parallelogram. फिर से बोल रहा हूँ, this is a sign of parallelogram. ये parallelogram का एक sign है. Okay? Okay. So now let's write given. Given में है that ABCD is a parallelogram. ABCD is a, मैं पूरा ही लिखता हूँ, कोई confusion नहीं रहेगा. Parallelogram. उसके अलावा हमें दिया हुआ है that DP is equals to BQ. So let's keep it as DP is equals to BQ. मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे. DP equals to BQ. ये हमें given है. Okay. So हम start करते हैं. Proof. अब हमें टैबलेट की जरूरत नहीं है, साइड में रख देते हैं. लेट्स यूज द होल पिच. प्रूफ. फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CQB. सो हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है ABD और दूसरा है CQB. तो अब हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं, हम लिख लेंगे AD is equals to BC. This is opposite sides of parallelogram. या दूसरा पार्ट आ जाएगा हमारा एंगल ADP इक्वल्स एंगल CBQ. ये हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल. थर्ड पार्ट हमारा आ जाएगा PD equals to BQ. एंड ये क्या है, ये गिवन है. सो देयरफॉर ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CQB के. कौन से रूल से, देखिए, साइड एंगल साइड. तो ये कौन से रूल से होगा, साइड एंगल साइड रूल. यहाँ से हम एक
वो लिख लेंगे that AP is equals to CQ and this is CPCT. So हमने फर्स्ट भी प्रूव कर लिया और हमने सेकंड भी प्रूव कर लिया. ठीक है, आते हैं थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट हम लोग प्रूव करते हैं इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD. ठीक है, अब हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? AQB और दूसरा हम ले रहे हैं CPD. ओके, सो यहाँ पे आएगा AB इज इक्वल्स टू CD. ये पार्ट क्या है? अगेन सेम थिंग, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. या फिर दूसरा हम फिर से एक एंगल हमें इक्वल करना है. हम लिख लेते हैं ABQ इज इक्वल्स टू एंगल CDP और ये क्या आएगा? ऑल्टरनेट एंगल. और थर्ड हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है कि भाई BQ इज इक्वल्स टू PD. ये पार्ट हमें गिवन है. ओके, so again, okay, I'll repeat myself in English. So AB is equals to CD, that is opposite sides of parallelogram. Angle ABQ is equals to angle CDP. So if you guys have any doubt, let me mark this. So in the first case I have mentioned that these two are equal. In the second case I am mentioning that this angle is equal to this angle and both of them are equal with alternate angle, and that is why I have written alternate angle over here and alternate angle over here. Now PD is equals to BQ or BQ is equals to PD. Both parts were already given, so I am continuing with that is given. So because of which triangle AQB is congruent to triangle CPD by which rule? SAS rule. Therefore AQ is equals to CP and this is what? CPCT. Now okay, let me make this straight, I'm sorry. So now let's keep this as equation 1 and let's keep this as equation 2. So as AP is equals to CQ and AQ is equals to CP from equation 1 and 2, therefore APCQ is a parallelogram as opposite sides are equal. Hence proved. Okay, so I'll keep it still like, okay, it's not coming in the frame, so I'll keep it still like this so you guys can copy it from here. Yeah, let's give you a quick revision. We need to prove that triangle APD is congruent to triangle CQB. AP is equals to CQ, triangle AQB is congruent to triangle CDP. AQ is equals to CP. APCQ is a parallelogram. गिवन में था ABCD एक पैरेललोग्राम है और दिया हुआ था दैट DP जो है वो BQ के इक्वल है. हमने प्रूफ स्टार्ट किया, फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB जो उन लोगों ने हमें दिया था. AD इक्वल्स टू BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ट्रायंगल ADP इज इक्वल्स टू ट्रायंगल CBQ, ऑल्टरनेट एंगल. PD इक्वल्स टू BQ गिवन है. ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB. प्रूफ हो गया कौन से रूल से? SAS रूल से. Therefore हमने लिखा AP equals to CQ CPCT. We proved that this side equals to this side by CPCT. अब हम गए दूसरे ट्रायंगल में. दूसरा ट्रायंगल हमने लिया AQB and CPD. अगेन उन लोगों ने हमें दिया हुआ था. So यहाँ पे हमने लिया AQB CPD. हमने प्रूव किया AB equals to CD, that is opposite sides of parallelogram. हमने लिखा एंगल ABQ is equals to angle CDP, that is alternate angle. हमने लिखा BQ equals to PD which was given to us. हमने लिखा triangle AQB is congruent to triangle CPD by SAS rule. Therefore AQ equals to CP and that is CPCT. Now as AP is equals to CQ and AQ is equals to CP from equation 1 and 2, equation 1 and 2, therefore APCQ is a parallelogram as opposite sides are equal, and that is one of the properties जो हमने हमारे
फर्स्ट लेक्चर में की थी चैप्टर 8 के, जहां पे हम लोगों ने पैरेललोग्राम के सारे लॉस किए थे, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD. Show that triangle 1 and my scale. Here it is. Okay, so first, as usual, let's make the diagram. अच्छा, काफी लोगों को ये होगा कि भाई सर डायग्राम क्यों बना रहे हो? डायग्राम बनाना जरूरी है भाई. डायग्राम नहीं बनाओगे, एक्चुअली कंपल्सरी शायद नहीं भी है, बट फिर भी इफ यू मेक डायग्राम इट्स वेरी गुड टू अंडरस्टैंड. या एंड आई वांट माय स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. आप जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा. ओके, नाउ लेट्स मेक अ परपेंडिकुलर. Yeah, so we made the perpendicular. Now let's solve the question. Yeah. Let's name it A, B, C, D, E, Q. Yeah. This is question number 6, exercise 8.1. Okay, we are doing exercise 8.1. This is question number 6. Let's start the question. So to prove first part हमें prove करना है triangle APB. ये P है, please excuse my handwriting. APB is congruent to triangle CQD. Okay, ये first part है. Second part है AP equals CQ. Yeah, given लिख लेते हैं. अच्छा भैया ये G है, जिस किसी को भी डाउट हो ये G. ओके, गिवन में है दैट ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Second part which is given to us is AP and CQ are perpendicular from vertices and A and C. So AP is perpendicular on BD as CQ is perpendicular on BD as well. Yeah, on diagonal BD. Yeah. So now let's prove it. So proof. Let's start with the proof. We need to prove APB and we need to prove CQD. Okay. In triangle APB and triangle CQD. So as it is perpendicular, angle P. Angle APB is equals to angle CQD, that is 90 degree, which is already given to us. So हम ऐसे लिख सकते हैं. Second part हम लोग लिख लेते हैं. Angle PBA equals angle CD PBA. QCD लिखना चाहिए था. QCD. ठीक है, सो PBA equals to QCD. QCD सही है? नहीं, QDC होगा. आई एम सॉरी, माय बैड. सो हम ये प्रूफ कर रहे हैं दैट PBA is equals to QDC है, इसीलिए डायग्राम बनाना जरूरी है. मैं आप लोगों को खाली एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि हमारी क्या गलतियां हो रही हैं. ओके, अगर हम डायग्राम नहीं बनाए होते तो अभी हम यहाँ कंफ्यूज हो गए होते और पेपर में लिखना अलाउड नहीं है. सो प्लीज अवॉइड दैट. इट्स नॉट allowed to write in the paper. So angle QDC, this is alternate angle. I was going to say that is, and this is alternate angle. So angle PBA is equals to angle QDC and that is alternate angle. और एक side equal proof कर देते हैं. AB equals to CD, opposite sides of parallelogram. अच्छा, आप लोग double O double P लिख के नहीं छोड़ सकते हैं. You need to write the whole thing. काफी टीचर्स गिवन में चला लेंगे. सो आस्क योर टीचर्स whether we have to write opposite sides of parallelogram or is given okay. If they say given is okay, go with it. Opposite sides of parallelogram. Therefore, triangle APB is congruent to triangle CQD by AAS rule.
Therefore, AP equals CQ, CP, CT. Okay? So एक ही झटके में दोनों प्रूफ हो गया. This is our first part and this is our second part. Okay, quick revision of the question. As usual, we need to prove that triangle APB is congruent to triangle CQD. So हमने उठाया AP equals to CQ. Given में था ABCD is a parallelogram. AP is perpendicular to BD. CQ is perpendicular to BD. दोनों हमें दिया हुआ है. C AP is perpendicular to BD and CQ is perpendicular to BD. So अब हमने proof start किया. हमने लिया triangle APB. हमने लिया triangle CQD. APB equals to CQD equals to 90 डिग्री था. PBA equals to QDC equals to, मतलब ये alternate angle था. C AB equals to CD, opposite sides of parallelogram. इसलिए first part proof हो गया. Triangle APB is congruent to triangle CQD. AP equals to CQ, CPCD. ठीक है? Now let's start with question number 7. ये थोड़ा बड़ा question है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 जब भी हम लोग देखते हैं ना, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं पूरे डायग्राम एंड एवरीथिंग, बट एक्चुअली पूरा डायग्राम आपको नहीं देखना है. जब एग्जाम में आएगा तो दे विल नॉट गिव यू द होल डायग्राम. सो क्वेश्चन नंबर 7 इज ABCD इज अ ट्रेपेजियम. Question is ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equals to BC. मैं नाम दे देता हूँ फालतू में कोई कंफ्यूजन ना हो. A B C D हमें बुक में दिया हुआ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ओके, नाम दे दिया हमने. AB is parallel to CD हमें दिया हुआ है. AD is equals to BC हमें दिया हुआ है और हमें शो करना है काफ़ी सारी चीज़ें. सो उसके पहले एक कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. एक रूल है भाई लोग और बहन लोग भी, जब भी कंस्ट्रक्शन करो उसको मेंशन करो, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पर रूल्स. लेट्स मार्क दिस पॉइंट. बुक में दिया हुआ है, मैं भी वही लिबर्टी ले रहा हूँ, बट बिलीव मी एग्जाम में ये पोर्शन नहीं दिया होगा. एग्जाम में आपका डायग्राम, वो थोड़ा और उधर कर लेता हूँ. एग्जाम में आपका डायग्राम होगा खाली ABCD. ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. सो वी नीड टू प्रूव, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी नीड टू प्रूव. दैट फर्स्ट पार्ट इज एंगल A is equals to angle B. Second part is angle C is equals to angle D. Third part is triangle ABC is congruent to triangle BAD. And fourth part is diagonal AC equals diagonal BD. Okay? And given में हमारे पास खाली है ABCD is a trapezium. AB is parallel to CD और हमें दिया है AD equals BC. हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, हमें लिखना पड़ेगा extend AB to E join EC such that BC equals EC and AD is parallel to EC. So such that में हम लोग ये नहीं लिख सकते, बिकॉज बुक में लिखा है that extend AB and draw a line parallel to C to DA intersecting AB produced at E. So हम एक काम करते हैं, हम ये पोर्शन हटा देते हैं.
Let's prove. As AE is parallel to DC and AD is parallel to EC, therefore AECD is a parallelogram. Okay? Now AD is equals to EC, therefore BC is equals to EC and AD is equals to BC. यहाँ पे जिसने भी यूक्लिड का आई एम सो सॉरी यहाँ पे जिसने भी यूक्लिड का पोस्टुलेट पढ़ा होगा, मैंने लिखा AE is parallel to DC and AD is parallel to EC, therefore AECD is a parallelogram. Now AD is equals to EC, BC is equals to EC as AD is equals to BC. यूक्लिड का पोस्टुलेट है इक्वल ऑफ इक्वल आर इक्वल, यहाँ पे हमने वो यूज किया है. ओके, therefore angle CBE equals angle CEB. CBE is equals to CEB, opposite angles of equal sides. Okay, opposite angles of equal sides, and since they are equal, so that is what we are using over here. Also angle CBE plus angle CBA equals 180 degree. and यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉपर्टी लीनियर पेयर, and angle DAB plus angle AEC equals 180 degree. यहाँ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं. को इंटीरियर एंगल जिसको भी लिखना है और एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आप प्लीज लिख सकते हैं, वो सही है, वो गलत नहीं है. आई एम गोइंग विद को इंटीरियर एंगल, ये भी सही है. सो फ्रॉम हियर यू गेट ये दोनों लिख लिया हमने. CBA प्लस CBE हमें क्या चाहिए, हमें प्रूफ करना है CBA. सो यहाँ पे एंगल CBA इक्वल्स टू हो जाएगा 100. में डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ नहीं रेफरेंस के लिए. ABE सही कर लेता हूँ. मैं कुछ लोग बोलेंगे सर पीछे डायग्राम अलग है, आगे डायग्राम अलग है. आज मेरा इरेजर भी त्रास दे रहा है. तो मैंने लिखा एंगल CBA इज इक्वल्स टू हो जाएगा CBA हो जाएगा 180 माइनस CBE. और हमने अभी अभी लिखा एंगल DAB इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल AEC, या AEC लिखा है AEC. Now, since angle CBE equals angle AEC, therefore
180 माइनस एंगल CBE इक्वल्स, ये C है, इक्वल्स, मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे D लिखा था मैंने, therefore 180 माइनस एंगल CBE इक्वल्स 180 माइनस एंगल AEC हो जाएगा, and this is angle CBA equals angle DAB, that is angle A equals to angle B, hence proved. ये अभी फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ है, सेकेंड पार्ट है एंगल C equals to angle D. जब हम एंगल C इक्वल्स टू एंगल D बोल रहे हैं ना, हमने पहले प्रूफ किया कि ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल है। अब हमें प्रूफ ये करना है कि ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल है, क्योंकि ये जो सारा पार्ट है ना, ये पूरा कंस्ट्रक्टेड पार्ट है, ये हमारा डायग्राम का मेन पार्ट नहीं है, कंफ्यूज मत होना। जो ट्रायंगल CBE देख रहे हैं हम, वो हमारे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्टेड पार्ट है, वो ट्रायंगल में वो ट्रेपीजियम में पहले से नहीं था। मेन डायग्राम हमारा ट्रेपीजियम है ABCD। अभी हमें प्रूफ करना एंगल C इक्वल्स टू एंगल D है। सो एंगल C इक्वल्स टू एंगल D प्रूफ करना थोड़ा इजी हो जाता है। रीजन इज कि अगर हम 180 माइनस एंगल A करेंगे तो ये होगा एंगल D, और हम अगर 180 माइनस एंगल B करेंगे तो ये होगा एंगल C, एंड रीजन होगा को इंटीरियर एंगल। सो देयरफॉर एंगल C इक्वल्स टू एंगल D हो जाएगा। बिकॉज व्हेन इसमें भी हम यूक्लिड्स का एक पोस्टुलेट यूज करेंगे, व्हेन इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देयर डिफरेंस इज इक्वल। सो एंगल C इक्वल्स टू एंगल D प्रूव हो गया। ये हमारा सेकेंड पार्ट था। अब बहुत इजीली हो जाएगा। थर्ड पार्ट है ट्रायंगल, लिख ही लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल ABC मतलब ये पार्ट, और एंगल BAD ये पार्ट। मेरा ये वाला डायग्राम देख के समझ गए होंगे सभी लोग कि मैं क्यों स्केल यूज कर रहा था। ओके, प्रूफ करते हैं। थोड़ा इजी है इसका प्रूफ। सबसे पहले लिख लेते हैं AB इक्वल्स टू AB कॉमन, फिर लिख लेते हैं AB इक्वल्स टू AB कॉमन, और एंगल DAB इक्वल्स एंगल ABC गिवन नहीं है, प्रूव्ड अबव। अच्छा, यहाँ पे आप एंगल A एंगल B लिख सकते हो, प्रूव्ड अबव। और दूसरी प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं BC equals to AD, ये गिवन था ऑलरेडी। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle BAD by SAS rule. Therefore, और क्या प्रूफ करना है? AC equals to BD, CBC। ओके, रिविजन। ओके, लेट्स गो फॉर इट। सो पहले हमें प्रूफ करना था एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। सेकेंड पार्ट जो प्रूफ करने का था, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ उसको। सेकेंड पार्ट जो प्रूफ करने का था, दैट वाज एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। थर्ड पार्ट था ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। फोर्थ था डायगोनल AC इज इक्वल्स टू डायगोनल BD। गिवन था ट्रायंगल ABCD इज अ ट्रेपीजियम, AB इज पैरेलल टू CD, और दिया हुआ था AD इज इक्वल्स टू BC। हमने कंस्ट्रक्शन किया एक्सटेंड AB टू E जॉइन EC सच दैट, अभी जिसको दिक्कत हो रही है अब उसके लिए यहाँ पे लिख सकते हैं इट ड्राइड अप AD इज पैरेलल टू EC। ओके,
शाइन आ रहा है, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। क्यों सी ऐसा आ रहा है? EC। सो एज हमें दिया हुआ A is parallel to DC, AD is parallel to EC, AECD पैरेललोग्राम हो जाएगा। द रीजन इज हमने पीछे देखा था अ पैरेललोग्राम हैव टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, तो हम वो यूज कर रहे हैं कि हमारे पास दो पैरेलल साइड्स हैं, सो इसीलिए ये एक पैरेललोग्राम होगा। AD is equals to EC हो जाएगा, BC equals to EC, opposite sides of parallelogram are equal. Now as AD is equals to BC, therefore angle CB is equals to CEB। मतलब मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ पे कि एंगल ये दोनों एंगल्स जो हैं ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंड द रीजन इज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। फिर एंगल CBE प्लस एंगल CBA, CBE प्लस CBA इक्वल्स टू 180 होगा लीनियर पेयर, एंड DAB प्लस AEC, DAB प्लस AEC इक्वल्स टू 180 होगा कोइंटीरियर एंगल। सो ये पार्ट हम लोग पुट कर देंगे एंगल C, ओ बहुत ऊपर हो गया, एंगल CBA इक्वल्स टू 180 माइनस CBE हो जाएगा। CBA 180 यहाँ पे है, CBE वहां जाएगा, ओके ओके आई एम सॉरी, CBE यहाँ पे है, CBA यहाँ पे है, CBE वहां जाएगा तो 180 माइनस CBE हो जाएगा, और AEC यहाँ पे है तो DAB वहां जाएगा तो 180 माइनस DAB हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टी यूज की है, तो यहाँ से CBE इक्वल्स टू AEC हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज की है व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देयर डिफरेंस इज इक्वल। फिर ओके, और मैंने इन डिटेल लिखा भी, सो इसीलिए एंगल A इक्वल्स टू एंगल B हो गया, हेंस प्रूव्ड। 180 से हमने दोनों एंगल को माइनस किया, कोइंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी C और D इक्वल हो गया। फिर हमने लिया ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD, AB इक्वल्स टू AB कॉमन है। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से ट्रायंगल लिए हैं, किसी को ऐसी कंफ्यूजन हो, सो मैं यहाँ पे एक बार एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। हमें दिया है ABD और हमें दिया है ABC, ओके। हम ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं, जिसमें से ये दोनों कॉमन साइड्स हो गई, और AD इक्वल्स टू BC हमें गिवन है, ऑलरेडी इक्वल है, और हमने प्रूफ किया था कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, और ये प्रॉपर्टीज से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। बाद में AC इक्वल्स टू BD CPCT हो गया, हेंस प्रूफ्ड। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, एंड दिस इज हाउ द होल एक्सरसाइज गेट्स ओवर। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा। दिस इज होल इज क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअली, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा। हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैंने दो अलग अलग मेथड से किया था, तो मैं थोड़ा स्लो यहाँ पे रुक जाता हूँ, आप पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हो इफ यू वांट टू कॉपी। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इतना में ही हो गया। This is question number 7, and this again is question number 7. These two diagrams are just for rough reference. Please इसको seriously मत लेना. This is just to explain you. Main diagram हमारा यही रहेगा. This is our main diagram. Okay. Thank you guys. Please like, share and subscribe the channel. And दोस्तों के साथ share करो जो grade 9th में हैं. It will help them a lot. और बाकी 8.2 के लिए stay tuned. It will come very soon. Thank you. God bless.